Good afternoon, students. So once again, we'll start with the new this particular video on numericals on analysis of frames. So in the previous video, we discussed about the all theory part and even the procedure part, how to solve the numericals on analysis of frames. Okay. So let's start the problems. So you can see the first question is, for a given frame, determine the components of forces acting on member C, D, E, F and A, B, C. So he has given one frame and he is asking to find the forces acting on that particular members, because frame is nothing but the joining of 2-3 members. So you can see there are what is asking is C, D, E, F, correct? This is C, D, E, F member and also A, B and C. Okay, so this is one frame. So 1 second. Okay, so you can see if you observe this particular first हम क्या करते हैं, ये फ्रेम को ध्यान से देखते हैं. तो ये फ्रेम, इफ दिस इज ए फ्रेम, करेक्ट है, थोड़ा साइज बढ़ाते हैं, दिस इज फ्रेम. ओके, थोड़ा ऐसा, ठीक है. सो इफ यू सी this particular support is hinge support, and you can see this is a roller support. You can see some 2 rollers is provided. So you should know if this is hinge support, so that means 2 reaction forces comes into picture, and if it is a roller support, there is a 1 reaction force comes into picture. Okay, and don't forget, even you can see here there is a moment he has provided. He has given the moment also, that is which is in the clockwise direction, and the magnitude is 72 kilonewton meter. Okay, so the distance between these two is 4 meter, and even you can see the dimensions are given, that is between C and D it is 2 meter, and D and E it is 2 meter, and E and F it is 2 meter. Okay, very simple, and most of the time they will ask this type of numericals in the exams. Okay, so let's start the solving. So first step is simple. You need to consider the entire frame and draw the FBD for the entire frame. Okay, you know already what is FBD. So what I'm going to do is, a second. Okay, so you can see I draw the FBD. This was hinge support, so I'm drawing 2 reaction forces, HA and VA, and you can choose the direction. HA can go either left side or right side. So in this particular case I'm taking it as a left side, so left side HA and upward VA. And this is roller support, I'm taking this is as upward, that is support is FA, vertical force VF. Okay, so next after that one, what we are doing, the distance जो भी है 4 मीटर रखा है, and moment लिखा है, and 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर सब मेंशंस किया है. क्लियर है? ओके, डन. FBD खत्म हो गया. Now by inspection it can be seen that this one, seen that 2 force member, that is BE, so that means this is BE is a 2 force member subjected to tensile or compressive force. Since BE is connected between the two members of the force frame, its force is internal. So you can see here, if you see this particular, I'll do one thing, I'll little bit zoom करता हूँ. Okay, if you see this member BE, correct है, so it is connected between the 2 frames itself, correct है, 2 frames itself, that is this is one frame and this is one frame and this is one frame, इन दोनों के बीच में कनेक्ट है, तो फ्रेम के अंदर ही है. सो वट एवर द फोर्स इट इज़, वेदर इन दोनों के बीच में आइदर टेंशन रहेगा या कंप्रेशन भी हो सकता है. वी डोंट नो दैट वन, वी नीड टू कैलकुलेट दैट वन. तो कंप्रेशन रहने दो या टेंशन रहने दो, बट इट शुड बी, इट एक्ट्स एज ए इंटरनल फोर्स. इंटरनल टेंशन हो सकता है, इंटरनल कंप्रेशन हो सकता है. सो दैट मीन्स
इसका मतलब क्या है कि व्हेन यू ड्रॉ द एफबीडी ऑफ द एंटायर फ्रेम, तो ये इंटरनल टेंशन है या इंटरनल कंप्रेशन रहेगा, तो वो आप एफबीडी में नहीं दिखाओगे, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो अबाउट टिप्स में एक पॉइंट आया था। तो इसका क्या करोगे, जब इसको आप सेपरेट करोगे, सो दैट मीन्स आप ये फ्रेम और ये फ्रेम को जब आप सेपरेट करते हो तो जैसे ऐसे आएगा, तो ये ऐसा आएगा समझो, और ये ऐसा आएगा सेपरेट करने के बाद, तब ये जो फोर्स है ये ऐसे दिखाओगे। जब आप सेपरेट करते हो तो तब एक्सटर्नल बन जाता है, अभी जब पूरा एंटायर फ्रेम को लोगे तो वो इंटरनली रहेगा। क्लियर है? सो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाइल ड्राइंग द एफबीडी। सो चलो विल स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, पूरा एफबीडी फ्रेम का एफबीडी बनाया ऐसे। नाउ we start by seeing this particular diagram, we can see it is a coplanar non-concurrent force system. So coplanar non-concurrent force system वाले तो आपके पास तीन equilibrium conditions आता है, summation fx is equal to 0, fy is equal to 0 and summation of moment is equal to 0. So you start applying the three equations. चलो first I am applying the summation fx is equal to 0. Sorry. ओके, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 अप्लाई करता हूँ, ऑल द एक्स कॉम्पोनेंट शुड बी इक्वल टू 0। तो बाई सीइंग दिस पर्टिकुलर डायग्राम आपको आप चेक करो कहाँ पे एक्स कॉम्पोनेंट आता है। सो देर इज़ एच ए, ठीक है। इज़ देर एनी अदर एक्स कॉम्पोनेंट? देर इज़ नथिंग। तो एच ए भी कैसा है, माइनस, लेफ्ट साइड जा रहा है तो माइनस, तो माइनस एच ए इज इक्वल टू 0, देर फॉर एच ए इज इक्वल टू 0। डन। नेक्स्ट we'll go for y component, that is summation fy is equal to 0, that means all the y components should be equal to 0. so this is summation fy। कौन सा है, va अपवर्ड जा रहा है तो प्लस va, इधर vf अपवर्ड जा रहा है तो प्लस vf, and is there any other vertical force? nothing। so you can see either va plus vf is equal to 0 और va is equal to minus vf। तो उसको इक्वेशन 1 बना के रखो, ठीक है, बाद में उसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट थर्ड वन, मोमेंट अबाउट, यू आर गोइंग टू कंसिडर मोमेंट। अभी मोमेंट ऐसे जगह पे लेने हैं जहाँ पे मैक्सिमम अननोन फोर्सेस 0 हो जाए, तो मैं मोमेंट सेंटर कहाँ पे लूँगा, ए के पास लूँगा, ठीक है। सो आई एम टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, सो दैट एच ए और वी ए दोनों 0 हो जाए। सो मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0, तो एच ए वी ए चला गया, बचा कौन सा, वी एफ। तो वी एफ ऊपर एक्ट हो रहा है, बट विथ रेस्पेक्ट टू मोमेंट सेंटर इट इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज माइनस। सो माइनस वी एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, 4। सो यू कैन सी माइनस वी एफ इंटू 4। देन नेक्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सेकेंड। नेक्स्ट वन, इज देयर एनी अदर फोर्स? नो, देयर इज अ मोमेंट। सो मूवमेंट को आप फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मत लिखो। देखो ये फोर्स था और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, बट ये जो हमको इधर दिया है वो डायरेक्ट मूवमेंट है, तो इसका आप कुछ मत करो, डायरेक्ट मूवमेंट लिखो। तो मूवमेंट लिख रहे हैं ना, मूवमेंट ही लिख रहे हैं ना, तो ये मूवमेंट ही है, तो डायरेक्ट लिखने का कितना, 72 किलो न्यूटन पर मीटर, बट इट इज़ रोटेटिंग क्लॉकवाइज, दैट्स व्हाई इट इज़ प्लस। अगर वो ऐसा रहता तो माइनस लिख सकते थे, -72, ठीक है, नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज इट्स ऑफ मोमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, सो वी एफ इंटू 4 प्लस 72, तो आपको वी एफ मिला 18 किलो न्यूटन प्लस मिला, तो आपका वी एफ जो कंसिडर किया अपवर्ड वो सही है। सो यू नो वी ए इज इक्वल टू माइनस वी एफ, यू आर सब्सटीट्यूट वी एफ वैल्यू, यू विल गेट वी ए इज इक्वल टू -18 किलो न्यूटन। सो दैट मीन्स माइनस आ रहा है बोले तो डाउनवर्ड, सो दैट मीन्स आपने जो वी ए ऊपर लिया है वो गलत है, करेक्ट है। सो आपको वी एफ शुड बी डाउनवर्ड, ठीक है, विथ 18 किलो न्यूटन एज अ मैग्नीट्यूड। डन। सो नेक्स्ट, ये हो गया एंटायर फ्रेम को कंसिडर करके समेशन एफ एक्स एफ वाई और मोमेंट लगा दिया। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, नाउ आई एम गोइंग फॉर डिसमेंबरिंग द फ्रेम। हाँ, मैं अभी डिसमेंबर करता हूँ। सो यू कैन सी हियर आई डिसमेंबर द फ्रेम, ठीक है।
सो आई डिसमेंबर द फ्रेम लाइक दिस, सेपरेट किया हूँ, क्लियर है। सो वंस अगेन सॉरी, थोड़ा कम रखता है, ठीक है। सो ये मैंने, आप देख सकते हो मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया, ठीक है। एच ए 0 है, वी एफ 18 है, सब लिख दिया, मोमेंट लिख दिया। हाँ, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, जहाँ पे आपका कॉमन पॉइंट था, सो ये था आपका कॉमन पॉइंट, कौन सा, सी कॉमन पॉइंट था, करेक्ट है। तो आप देख सकते हो जब हम एनालिसिस का जब स्टेप्स लिखते समय हमने ये पॉइंट कंसिडर किया था। सो यू कैन सी जहाँ पे आपका कॉमन पॉइंट सी है, दिस इज़ द सी पॉइंट, मैं फिर से उसको रखता हूँ, दिस इज सी पॉइंट, तो आप देख सकते हो इधर है सी। तो उस जगह पे आपको फोर्सेस लेना है इक्वल एंड ऑपोजिट, समझो दिस इज हिंज था तो दो फोर्सेस आएगा। सो दिस इज एच सी मेरा इधर जा रहा है और वी सी ऐसा जा रहा है, तो अपोजिट में कैसा आएगा, एच सी ऐसे जाएगा और वी सी नीचे आएगा, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट में रहे तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू शो एट द कॉमन पॉइंट। तो मैंने वो वैसा अभी इधर दिखाया हूँ, आप देख सकते हो, ठीक है। एच ए वी ए सब लिया, ये एच ए ये भी समझ में आ गया, वी एच ई वी सी एच सी सब मैंने डायरेक्शन वाइज बता दिया हूँ, बाकी सब लिख दो, इवन मोमेंट दिया है वो भी लिख दो। अभी ये जो है, जो था अभी इधर था, ये इंटरनल था, करेक्ट है। अभी ये जब आप सेपरेट करते हो ये बन जाता है एक्सटर्नल, यू कैन सी एक्सटर्नल टेंशन बन गया। तो अभी के लिए मैं टेंशन कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि अवे फ्रॉम द एरो मार्क, अवे फ्रॉम द फ्रेम ले रहा हूँ, ऐसा ले रहा हूँ। अगर आप हमारा वैल्यूज़ माइनस में आए तो इट इज़ उल्टा हो जाएगा, तो कंप्रेशन में है फ्रेम हो जाएगा दैट पर्टिकुलर मेंबर बी ई, ठीक है। तो ये बन गया मेरा एफ बी डी ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर। तो मैं इधर लिखा भी हूँ, देखो, डिसकनेक्टेड डिसमेंबर द फ्रेम एंड ड्रॉ एफ बी डी ऑफ द मेंबर बाय अज्यूमिंग रिएक्शन कंपोनेंट्स एज इक्वल एंड अपोजिट, इसके बारे में, ठीक है। ऑल्सो अज्यूम टेंसल फोर्स इन टू फोर्स मेंबर बी, इसके बारे में, डन। okay, next what we are going to do is, now you are going to apply the three conditions of equilibrium. Why three conditions of equilibrium? Once again you see this particular diagram, it is coplanar non concurrent force system, करेक्ट है ना। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यू आर गोइंग टू अप्लाई थ्री इक्वेशन, समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई एंड समेशन ऑफ मोमेंट। बट स्टेप्स में बताया था, यू स्टार्ट विद द मोमेंट, समेशन मोमेंट फर्स्ट अप्लाई करो, वो भी कहाँ पे लगाना है, जहाँ पे कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट कौन सा है, सी। तो इसलिए आप देख सकते हो, तो मैं क्या किया हूँ, आई एम टेकिंग मोमेंट अबाउट सी। तो यू कैन सी थ्री अननोन forces are there, कौन सा एच सी वी सी एंड एफ बी। सो अप्लाई थ्री कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम टू एनी वन ऑफ द मेंबर। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेक मेंबर ए बी सी। ओके, अनदर पॉइंट बोलना था कि ये दो मेंबर है ना, ये दो मेंबर में कोई भी मेंबरों को आप चूज करो, ठीक है। दीज आर द टू मेंबर्स, ऐसा रहेगा, करेक्ट है ना। ये दो मेंबर में आप कोई भी मेंबर को आप चूज करके आप समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई मोमेंट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मैंने कौन सा मेंबर चूज़ किया है, ए बी सी, दैट मीन्स दिस दिस एंड दिस, ये मेंबर को मैं चूज़ किया हूँ, ठीक है। तो वो भी कहाँ पे, मोमेंट अबाउट कॉमन पॉइंट पे लगा रहा हूँ, सी के पास, ठीक है। सो मोमेंट अबाउट सी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो मोमेंट अबाउट सी इज इक्वल टू ज़ीरो लगाया तो वी सी पास होके जाएगा, एच सी पास होके जाएगा, ये दोनों चला जाएगा। वी ए का वैल्यू पता है, एच ए का वैल्यू पता है, दो ओनली अननोन इज एफ बी, आपको एफ बी वैल्यू मिल जाएगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। So you can say summation about moment is equal to 0. पहला FB with respect to this point it is rotating anti-clockwise, वो भी कितना, 4 मीटर। You can see here minus FB into 4 मीटर, you can see this point, ये वाला। नेक्स्ट VA ये ऐसा है और ये ऐसा, तो ये वन सेकेंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, करेक्ट है। और डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर ही है। आप इधर मत देखो क्योंकि वो ऐसा कनेक्टेड है, तो इन दोनों के बीच में 4 मीटर ही रहेगा, करेक्ट है ना। तो यू कैन सी आई रिटर्न माइनस वी आई इंटू 4 बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज। और एच ए ऐसे भी 0 है तो छोड़ दो, ठीक है। सो इफ़ यू डू द कैलकुलेशन यू विल गेट एफ बी ई इज इक्वल टू -18 किलो न्यूटन,
ठीक है. सो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द नेचर ऑफ द फोर्स अज्यूम्ड इन द मेंबर बी इज रॉन्ग. सो सिंस वी आर गेटिंग द माइनस साइन, सो इसका मतलब है कि आप जो ये अज्यूम कर रहे हो डायरेक्शन ऐसा, सो वंस अगेन ये जो डायरेक्शन आप अज्यूम कर रहे हो, ये एरो मार्क ऐसा अज्यूम कर रहे हो ना, वो गलत है. इट इज़ कंप्रेशन. ठीक है. सो इसलिए आप देख सकते हो मैंने एफ बी इज इक्वल टू 80 -18 था, उसको 18 लिख दे, कंप्रेसिव लिख दिया. ठीक है. सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज I am going to apply remaining equilibrium conditions, that is summation fx is equal to 0. So summation fx is equal to 0 बोले तो all the x components should be equal to 0, that is minus ha minus hc plus fbe. correct है. तो you can see minus hc plus fbe. I'm not taking ha only because it is 0. ठीक है. और एफ बी का वैल्यू आपको पता है, एच सी वैल्यू मिल जाएगा -18 किलो न्यूटन. ठीक है. वंस अगेन अभी देखो -18 आ रहा है बोले तो इसका मतलब है कि जो आप डायरेक्शन इस तरफ अज्यूम कर रहे हो वो गलत है, इस तरफ है, वो बाद में लिखेंगे हम. नेक्स्ट समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0. तो ऑल द वाई कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू 0. कौन सा ये वाला माइनस वी ए प्लस वी सी or any other vertical component, no. So you can say minus VA plus VC is equal to 0 and VA is equal to VC. और VA का वैल्यू पता था 18, तो VC is equal to 18, तो प्लस आया, मतलब हमने जो डायरेक्शन ऊपर अज्यूम किया है वो सही है. ये लेफ़्ट साइड अज्यूम गलत था, इसलिए वो बन जाता है राइट साइड. तो अगर ये हो गया तो ये ऐसा आना चाहिए और ये ऐसा आना चाहिए. ठीक है. सो नेक्स्ट स्टेप चेक. तो मतलब हमेशा याद रखो, आप जब आप डिसमेंबर करते हो एक मेंबर लेके आप फोर्सेस फाइंड आउट कर दो. अभी आप दूसरा ऐसे कंसिडर करके फाइंड आउट करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एफ बी इधर जो है ये भी उधर रहेगा, ये भी वैल्यू इधर रहेगा. बट ये कब कर सकते हो, जब आपको क्रॉस चेक करना है. तो आप ये मेंबर लेके क्रॉस चेक करो कि जो भी हमने सॉल्व किया वो सही है क्या. ठीक है. So this is for checking. So we can find unknowns by considering member CDF. Now we are going to take CDF force. So that means ये वाला frame, ये वाला. ठीक है. So एक second, sorry. So now what I'm going to do is cross checking it. Once again मैंने समझो मैंने frame लिया, ये वाला frame लिया है. तो once again मोमेंट कहाँ पे लेना है. फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद डिसमेंबर करते ही जब आप कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करोगे तो स्टार्ट विथ मोमेंट, और वो भी मोमेंट कहाँ पे लगाना है, जहाँ पे कॉमन पॉइंट है. तो मोमेंट अबाउट सी लेता हूँ. तो मोमेंट अबाउट सी ले रहा हूँ. ये देखो मोमेंट अबाउट सी लिया तो ये फोर्सेस चला गया, बचा है तो ये एफ बी बचेगा. करेक्ट है. वी तो पास होके जा रहा है, वो भी चला जाएगा, बट ये बचेगा. सो यू कैन सी एफ बी एंड प्लस 72. तो एफ बी सी आया -18. करेक्ट है. तो -18 आ रहा है बोले तो आपका जो डायरेक्शन आप ऐसा ले रहे हो वो गलत है, उसका अपोजिट लेना है. सेम कॉन्सेप्ट पहले जो बात कर रहा था वही. तो सिमिलरली यू अप्लाई समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, आपको कुछ वैल्यू मिलेगा. समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, आपको कुछ वैल्यू मिलेगा. ठीक है. सो अब देखो समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, आई विल अप्लाई समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, दैट इज प्लस एच सी. उतना ही 0 आना चाहिए. ठीक है. और सॉरी एफ बी है ना, एफ बी, ठीक है, इधर भी है माइनस एफ बी. तो वो वैल्यूज आप एफ बी सी का एच सी वैल्यू फाइंड आउट करते हो -18 किलो न्यूटन. सिमिलरली एफ वाई से बेसिक समेशन इधर आपने किया है ना, यू हैव डन दिस सम मोमेंट एफ एक्स एफ वाई ड्रॉ की अप्लाई किया है ना इस मेंबर को फॉर दिस मेंबर. सिमिलरली यू टेक दिस मेंबर, similarly you take this member and you apply summation of moment fx and fy. ठीक है. फाइनली आपको क्या करना है, यू नीड टू ड्रॉ द फाइनल एफबीडी. ठीक है. सो यू कैन सी हियर फाइनल एफबीडी मैं लिख रहा हूँ. अब देखो
आप ये एच ई ए जो इधर एक फोर्स था वो ज़ीरो था, इसलिए मैंने छोड़ दिया हूँ। अभी ये वी ए था, ऊपर लिखा था मैंने स्टार्टिंग, बट हमारा वी ए का वैल्यू कितना आया था, आप अभी धीरे से क्रॉस चेक करते हैं। तो कितना आया था वी ए का वैल्यू, यू कैन सी हियर वी ए इज इक्वल टू 18 किलो न्यूटन आया था। मतलब जो हमने डायरेक्शन इधर ऊपर लिया है वो गलत था, तो इसलिए आप फाइनल एफ बी डी पे देख सकते हो, या उससे पहले भी मैंने चेंज किया था, तो -18 था, उसको 18 लिख के डाउनवर्ड डायरेक्शन में किया हूँ। करेक्ट है। और अब ये देखो, ठीक है, पहले जब मैंने अज्यूम किया था तो मेरा एरो मार्क राइट साइड जा रहा था, दिख रहा, तो एफ बी ई था, तो एफ बी ई का वैल्यू हमको पहले टाइम पे 18 किलो न्यूटन आया, तो यू कैन सी -18, दैट मीन्स हमारा डायरेक्शन गलत था। बट मैग्नीट्यूड देखो 18 किलो न्यूटन था। जब हमने क्रॉस चेक किया एफ बी, वो भी 18 किलो न्यूटन कंप्रेसिव आया था, तो मैंने डायरेक्शन चेंज किया हूँ। यू कैन सी हियर डायरेक्शन इज चेंज, बट 18 किलो न्यूटन कॉमन लिखा हूँ। नेक्स्ट हम इधर जाते हैं ऊपर, एच सी देखते हैं। एच सी का वैल्यू कितना आया था, एच सी का वैल्यू आया था, एक सेकेंड, 18 किलो न्यूटन माइनस में। करेक्ट है, दैट मीन्स हमारा एच सी लेफ्ट साइड में जा रहा था, तो गलत था। तो आप देख सकते हो एच सी इधर आया -18, और क्रॉस चेकिंग में भी एच सी आया -18, सो दैट मीन हमारा पहले जो लेफ्ट साइड में था वो बन गया राइट साइड, पहले जो राइट साइड में जा रहा था वो बन गया लेफ्ट साइड, क्योंकि माइनस में आ रहा था, और दोनों के लिए 18 मैंने दिखाया हूँ। सिमिलरली दूसरा वाला दैट इज़ कौन सा, वी सी भी देख सकते हो, 18 किलो न्यूटन। करेक्ट है, प्लस आ रहा है, तो इसका डायरेक्शन जो भी लिया था वो सही था। सिमिलरली इधर भी वी सी 18 किलो न्यूटन प्लस जो भी लिया था सही था। तो ऐसे आप जो करेक्टेड वैल्यूज है सब इधर आपको मेंशन करना है। सो दिस इज योर फाइनल चेक, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल बेस्ड दैट इज एनालिसिस ऑफ फ्रेम्स, ठीक है। सो सिंपल से बोलना है तो पहले टोटल फ्रेम ले लो, अप्लाई समेशन एफ एक्स एंड एफ वाई एंड मोमेंट, उसके बाद यू डिसमेंबर द फ्रेम, करेक्ट है, देन यू कंसिडर एनी वन फ्रेम, अप्लाई समेशन एफ एक्स एफ वाई एंड मोमेंट, बट पहले मोमेंट एट कॉमन पॉइंट, ठीक है। उसके बाद चेक करो बाय टेकिंग दूसरा फ्रेम, once again you apply summation of x fy moment, but start with moment at common point, then you'll get the values, then final frame लिखो, और जो भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आ रहा है वो सब दिखाओ। इतना याद रखो, जो कॉमन पॉइंट है उधर 18 किलो न्यूटन एक साइड ऐसा आ रहा है तो अपोजिट में ऐसा आना है, ये ऊपर जा रहा है तो इधर नीचे आना है, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉब्लम्स ऑन एनालिसिस ऑफ फ्रेम। सो नेक्स्ट वीडियो में हम विल टेक वन मोर प्रॉब्लम एंड विल सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन पर्सनली कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। थैंक यू।